Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the webinar on the role of the banking sector in advancing financial inclusion through financial literacy. My name is Mashal Mahbood and I'm Manager Sustainability and Initiatives at HPL. At HPL, we believe in the transformative power of financial literacy. Our efforts in collaboration with the State Bank of Pakistan aims to bridge the gap between financial services and the unbanked population. One of our flagship program, the National Financial Literacy Program, NFLP, has been instrumental in this regard. The NFLP program aims to educate the masses about the basic financial literacy concepts such as budgeting, saving, investments, and the use of banking services, thereby facilitating financial inclusion across the country. So now to start off this webinar, I would like to invite our esteemed panelists to introduce themselves. Please share a brief introduction about your background and your current role. Mr. Amir Hamid. Amir sir, would you like to introduce yourself? Should I? Ji. Gigi, thank you very much. Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Hamid. I work in the Innovation and Financial Inclusion Department of HPL. This department was formed in 2016, and at that time, the financial inclusion name of the department, I think we were the first in all of the banking industry which opted for this name of financial inclusion. और जितना नाम से जाहिर है, we are focused on this endeavor of financial inclusion, and our torch bearer for this initiative is Connect. I handle Connect since 2016, and what we do in Connect is that we create simplicity in the life for people. And when I say simplicity for the use of banking products, financial products. So, for example, we offer a less than a minute account opening process. Any consumer can go onto the Google Play Store or the App Store, download the app, and answer 2 simple KYC questions and get their account activated in less than a minute. Those consumers who are not that tech savvy, they can go to any one of the 40,000 agents, the third-party agents that we deploy across the country. They can go to their mom and pop stores, do a biometric verification, and get their account open instantly. So we have been at it since the last 5 years now. And when we think of financial inclusion, when we look the kind of impact that we have been able to achieve. So, for example, so far we have made around 9 million wallets. Out of those 9 million, 23% are women. Around 10% are farmers, around 7 to 8% are SMEs. So we are focused on all these 3 segments of the society. Before joining HPL, I was working in UBL in the same financial inclusion sector. I worked for 17 years in the telecom sector, working in multiple technologies like GSM, broadband, fixed, and over the air. So yeah, that's a bit about myself. Personally, I am a father of 4. I have 3 sons and a daughter. I am a fitness enthusiast. I'm a travel enthusiast, and I'm very much into water sports. Thank you. Thank you so much. Now, Ma'am Faria, would you like to introduce yourself? Ji, thank you, Mashal. Assalamu alaikum, everybody. Mera naam Faria Shahid hai, and I've been in the banking industry for over 17 years. I'm a strategic leader, and my core area of expertise has been, working on the high net worth client segment. And I've recently embarked on this very exciting journey to work on the women market program with HPL. HPL, is a market leader in the industry. So, we've launched a one of its kind multifaceted program under the name HPL NISA, जिसको I am looking after and heading, in addition to the HPL Prestige portfolio, which is our affluent banking. I've been in the industry for 17 years, and I worked with many prestigious organizations such as ABN AMRO Bank, Faisal Bank. I've also worked globally. I look forward to sharing my insights with you guys today and learning from you and the audience in the process. Thank you very much. Thank you so much. Mr. Salman, would you want to introduce yourself?
Yes, sure. Assalamu alaikum, everyone, wherever you are. It's a pleasure and delight to be here among such august panelists. So I'm sure it would be a learning roller coaster ride for everyone. I am Salman Shahzad. I am project director for a project called National Financial Literacy Program for Youth at NEBAF, National Institute of Banking and Finance, which is a subsidiary of State Bank of Pakistan. आप लोगों के साथ आज जो मेन पर्पस है हमारा वो यही है कि पिछले 22 साल में जो तकरीबन 23 मुल्कों में एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी में सीखा है उसको शेयर करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि कोई एक्शन पॉइंट्स निकल सकें ताकि आगे जाके हम लोग कोई बेहतरी ला सकें. आई विल नॉट ड्रिल डाउन इनटू द प्रोग्राम विच आई एम मैनेजिंग क्योंकि आगे शायद उसके बारे में बात हो जाए, ना हुआ तो कंक्लूजन के वक्त आई विल गिव मोर ओवरव्यू. बट आई बिलीव दिस इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि हम सारे क्या कर रहे हैं और मिलके क्या कर सकते हैं. So it's a pleasure. Thanks to HBL Michelle for inviting me and I look forward to the session. Thank you. Thank you so much. So we'll start off with the basic question of definitions. First, we need to lay down the ground for what exactly is financial inclusion and explain why is it crucial for economic development. So Amir Saab, would you want to define that? Thank you. जी, I'll do that. जी, तो देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो मासेस हैं आपके उनको एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर हो, फॉर्मल वो अपना एक अकाउंट खोल सकें, उस अकाउंट को एक्सेस कर सकें और उससे अपनी डेली की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर सकें, अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल कर सकें, चाहे वो सेविंग की नीड्स हों, चाहे वो क्रेडिट की नीड्स हों, चाहे वो पेमेंट की नीड्स हों, तो जो भी उनकी फाइनेंशियल सेक्टर से नीड्स हैं वो अपनी पूरी कर सकें. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन की. और उसकी आप एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह देख लें कि जो हम कहते हैं कि व्हाई इट मैटर्स, व्हाई वी शुड पुश द फाइनेंशियल इंक्लूजन एजेंडा. तो मेरी नज़र में तीन तरह के बेनिफिशरीज हैं, तीन तरह के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्बेट के अंदर. और पहला जो स्टेक होल्डर है इसमें ऑफ कोर्स वो कंज्यूमर है कि जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर एक्सेस हासिल होती है तो वो अपनी वो जब फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट बनता है अपनी सेविंग्स बेहतर कर सकता है. अगर उसको पैसे कहीं क्रेडिट पे चाहिए तो वो पैसे अगर उस बैंक से उधार ले सकता है तो उसकी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, वो अपनी इनकम को जो है वो इंक्रीज कर सकता है. जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो जो मुल्क है उस मुल्क की जो ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इंक्रीज करती है. जब उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज करती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मुल्क की जीडीपी के ऊपर आता है. और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो हमारी तरह के कुछ ममालिक जिनमें कम से कम मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ एटलीस्ट इंडोनेशिया से, कि जो कल्चरली हमारे बहुत करीब हैं और जिनकी पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स जो हैं वो हमारे से बहुत मिलते जुलते हैं. तो इंडोनेशिया की अगर आप एग्जांपल लें तो पिछले 15 से 20 सालों के अंदर इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन की रेल्स को यूज करते हुए इंडोनेशिया ने अपनी जो जीडीपी है उसमें 15 से 20% का इजाफा किया है. इंडिया एक और नॉर्थ स्टार है इसी एम्बेट के अंदर, और इंडिया ने पिछले 20 सालों के अंदर अगेन अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन की रेल्स को यूज करते हुए, और इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, कोई 10 से 12% अपनी जीडीपी में इजाफा किया. और तीसरी एग्जांपल ब्राजील की है. तो अगर यही चीज़ आप पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और पाकिस्तान अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को यूज करते हुए अगर अपनी जीडीपी में 20% का भी इजाफा कर सके तो पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी साइज $350 बिलियन है. 20% का मतलब ये है कि $70 बिलियन का इम्पैक्ट जो है वो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से हो सकता है. और वो हम क्यों कह रहे हैं? अब इसकी छोटी छोटी आप एग्जांपल्स लें कि फॉर एग्जांपल फारिया अच्छी तरह जानती हैं खवातीन के लिए उन्होंने बहुत काम किया खवातीन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. तो इसमें वी हैव आल्सो डन मल्टीपल फोकस ग्रुप्स. तो खवातीन हमें ये बताती हैं कि अगर कभी उनको अपनी किसी जाती ज़रूरत के लिए 10,000 रुपये की भी ज़रूरत हो तो उनके पास दो ही चैनल्स होते हैं वो पैसे रेज करने के लिए. आइदर वो अपने किसी रिलेटिव से मांगती हैं, अपने हस्बैंड से या किसी से मांगती हैं, या अपने नेबरहुड में किसी से वो पैसे लेती हैं. जब वो इस तरह काम करती हैं तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी उससे मुतासिर होती है. वर्सेस अगर यही पैसे वो 10,000 रुपये अगर वो बैंक अकाउंट यूज कर रही हैं और बैंक के पास उनका डेटा हो तो बैंक उनको जब ये क्रेडिट एक्सटेंड करता है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई हिट नहीं आती.
और वो जो है वो पैसों को यूज करके एक मुनासिब फीस के साथ वो पैसे टाइम पे वापस कर देती है। सिमिलरली अगर आप इसकी और एग्जांपल लें तो जो हमारे एसएमईज हैं, अब कोई छोटा फ्रूट सेलिंग वेंडर है, उस फ्रूट सेलिंग वेंडर ने अगर अपना सामान बेचना है और उसको डिजिटल पेमेंट चाहिए, तो वो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करके, और अब बेतहाशा स्टेट बैंक ने और बाकी बैंक्स ने क्यूआर के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर काफ़ी इंटरऑपरेबल जो सिस्टम्स हैं वो लेआउट कर दिए हैं, तो वो अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो इनका बिजनेस और लाइफस्टाइल का इंक्रीज जो होता है वो फिर डे एंड पे फिर जीडीपी के अंदर जाके मुल्क में कंट्रीब्यूट करता है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इम्पेरेटिव दैट ऑल कंट्रीज हु आर डेवलपिंग इन नेचर they should go the path for this financial inclusion. Thank you. Faria, would you want to add something to that? Thank you. Further to what Amir has just very capably described, I'd just like to add the importance of financial inclusion from a global perspective, where this has been identified as an enabler for 7 of the 17 Sustainable Development Goals by the United Nations. एक और जो चीज मैं ऐड करना चाहूंगी further to what Amir said was this also greatly helps in reducing inequality and poverty in any country, which is very critical for a country like Pakistan. तो financial inclusion की जो ये वाली बात आपने की थी मशल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कैसे हेल्प करता है, तो simply put it helps in creating jobs. It improves your access to credit for consumption and simply production purposes. Household expenditure जो है वो आपका increase होता है, and it also helps prevent exploitation from the informal sector that we see in a country like ours. So essentially this helps and plays a larger role similar to what Amir pointed out in the overall socio and economic development of a country. So I just wanted to add those few thoughts. Thank you so much. Now we'll move on to the concept of financial literacy. What exactly is financial literacy? How is it different from financial inclusion? And what are its main components? So, Salman Sahab, would you want to describe financial literacy? Sure, thank you, Mashal. So, taking a lead on what Amir and Faria has said, जो इन्होंने सारी बातें की उसको जानने को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, आसान सा काम है. So basically, as we are talking about financial literacy, तो आमिर साहब और फरिया ने जो बात की थी, तो I'll urge the users के कॉन्सेप्ट है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, वो जाके जरूर पढ़ें, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो they'll understand in detail के how this financial inclusion helps in economic growth. So financial literacy किसी भी सक्सेस के पीछे जो एक सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है वो सोचा समझा फैसला है. तो जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो ये सोचा समझा फाइनेंशियल डिसीजंस लेने को कहते हैं और कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ एबिलिटी, इट्स अ लाइफ स्किल जो कि हर बंदे के पास, बच्चे के पास, बुजुर्ग के पास, मर्द औरत इररिस्पेक्टिव होनी चाहिए. वो लाइफ स्किल क्या है कि वो जब भी किसी पैसे की लेन देन की बात करो तो सोच समझ के फैसला करे. कंपोनेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनली हम लोगों ने जब अपना कंटेंट बना रहे थे तो 28 मुल्कों की सर्च की थी, लिटरेचर रिव्यू किया था, तो दे आर 11 कॉन्सेप्ट जो इनकम, एक्सपेंस, परचेज, सेविंग, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंसिंग, डिजिटल और जो हमारा इंश्योरेंस पे आके खत्म हो जाते. तो कॉन्सेप्ट वही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है. सो टू कीप इट शॉर्ट, आई बिलीव के फाइनेंशियल लिटरेसी इज जस्ट टू मेक अवेयर रैशनल फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे वो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेवल पे हो, बजटिंग के लेवल पे हो, इदारे के लेवल पे हो, बोरिंग के लेवल पे हो. तो एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए और कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू मनी. Thank you so much. Now moving on to the question, what do you see as the biggest challenges and gaps in achieving comprehensive financial inclusion in Pakistan? Okay, तो थैंक यू मशल फॉर द क्वेश्चन. देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन पाकिस्तान के आई थिंक 3-4 मेजर चैलेंजेस हैं. मेरा अपना व्यू इसके ऊपर ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है विद अ कंट्री लाइक आवर्स, जिसकी आबादी 250 मिलियन है और जिसमें यूथ बल्ज है, 37-38% हमारी आबादी जो है वो यूथ के ऊपर है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो आनी तो किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीन से ही है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन विल फॉलो डिजिटल इंक्लूजन. तो किसी बंदे को के पास ब्रॉडबैंड की एक्सेस होना, इंटरनेट की एक्सेस होना, आई थिंक ये एक प्री रिक्विजिट है एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. तो अगर इस पहले पॉइंट को अगर हम देखें
तो पीटीए कुछ नंबर्स रिपोर्ट करता है डिजिटल इंक्लूजन के हवाले से कि कितने हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, पॉपुलेशन है कि जिनको ब्रॉडबैंड की एक्सेस है। और ब्रॉडबैंड जब मैं कहता हूँ तो ब्रॉडबैंड को प्लीज आप दो में डिवाइड कीजिए। एक है जो टेलीकॉम कंपनी 3G 4G एक्सेस देती हैं, उसके जो नंबर स्टेट बैंक रिपोर्ट करता है वो तकरीबन 100 मिलियन प्लस के नंबर हैं जिनके पास जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड की एक्सेस है, मोबाइल ब्रॉडबैंड की। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और किसी भी तरह के डिजिटल इंक्लूजन के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड से ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल में फिक्स ब्रॉडबैंड एक्सेस होती है। और फिक्स ब्रॉडबैंड एक्सेस इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत कम है, और बहुत कम से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारे मुल्क में तकरीबन 40 मिलियन के करीब इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, यानी कि 40 मिलियन घराने दफातर ऐसे हैं कि जो बिजली का मीटर जहाँ पे लगा हुआ है। उसके 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 अगेंस्ट अगर आप ये देखें कि कैसे कितने ऐसे घराने हैं या कितने ऐसे एंटिटीज हैं कि जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो वो लेस देन अ मिलियन है। तो एक तो नंबर वन ब्रॉडबैंड यूजर्स हमारे बहुत कम है, और दूसरा फिर ब्रॉडबैंड की कॉस्ट। अगर मैं अपने नेबरिंग इंडिया से कंपेयर करूं तो जिस ब्रॉडबैंड के पैकेज की अगर 10 MBPS के पैकेज की भी हम बात कर रहे हैं तो 10 MBPS पैकेज की अगर पाकिस्तान में एक बच्चा जो है वो 1000 रुपए देगा तो इंडिया में उसी ब्रॉडबैंड के लिए वो बच्चा जो है वो 300 रुपए दे रहा होगा। तो कॉस्ट और ब्रॉडबैंड की एक्सेस, आई थिंक ये एक प्री रेक है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। दूसरा जो मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट है कि जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकी, वो उसको भी अगर आप खुल के डिटेल में हम देखें तो मुल्क में जो टोटल डिजिटल वॉलेट्स हैं उनका भी नंबर जो स्टेट बैंक रिपोर्ट करता है टोटल अकाउंट्स का वो तकरीबन कोई 100 मिलियन के करीब डिजिटल वॉलेट्स हैं, लेकिन उनमें जो एक्टिव वॉलेट्स हैं वो लेस देन 15 या 16 मिलियन है। जो लास्ट रिपोर्ट आई है तो लेस देन 15-16 मिलियन एक्टिव वॉलेट है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है टोटल में और एक्टिविटी लेवल्स के अंदर। सिमिलरली टोटल बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें तो 40 मिलियन के आसपास यूनिक अकाउंट्स होंगे, क्योंकि ऐसा कोई काउंट हमारे पास है नहीं। क्योंकि अगर मैं पहले अगर मोबिलिंक में कहीं और जॉब कर रहा तो मेरे 3-4 अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स कितने ऐसा कोई अकाउंट है नहीं, लेकिन 40 मिलियन के करीब आप समझ लें कि ऐसे अकाउंट्स हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं कि मुल्क में ग्रो करती जा रही हैं और पिछले 5 सालों में तकरीबन 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुई हैं। 50 ट्रिलियन से 180 ट्रिलियन तक गया है नंबर। लेकिन इसके बरक्स हम ये भी देखते हैं कि जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है वो भी ग्रो कर रही है। तो जो कैश इन सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो अगर 2019 में 5 ट्रिलियन था तो पिछले साल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 9.5 ट्रिलियन है कैश इन सर्कुलेशन। So whatever digital interventions that we are doing, it is not impacting the cash in circulation in the country. I think that needs to be looked at, that how can we convert cash into digital, and then how can we scale up financial inclusion through that. Third point मेरा फिर उसमें ये है कि I think हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसका हमारी जीडीपी के अंदर, अभी तक हम कोई प्रॉपर फाइनेंशियल इंक्लूजन की इम्पैक्ट स्टडी नहीं करते कि इम्पैक्ट इसका कहाँ पे और किस सेक्टर में जाके कितना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमें पता है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 23% एग्री सेक्टर की है। हमें ये पता है कि 18% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहाँ पे किस तरह की आइदर डिजिटल इंटरवेंशन, आइदर पॉलिसी इंटरवेंशन, आइदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटरवेंशन करने की जरूरत है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएं, आपके जीडीपी में इंक्रीज आए, जहाँ से आप डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक हाई लेवल के जिनके ऊपर अगर थोड़ा डिटेल में हम काम करें तो शायद अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much. Faria, would you want to add to that? Marshall, I'll very briefly add to what Amir said. देखिए ये जो challenges हैं इसके लिए कुछ stats हैं जो कि बड़े important हैं। हमारी पाकिस्तान में जो ख़वातीन बैंक accounts formally hold कर रही हैं, that's approximately about 18%। जो active account ownership है उसके अंदर जो gender gap है वो तकरीबन 30-32% है। हमारे जो ख़वातीन के लिटरेसी रेट्स हैं that are low, and you know I'll be expanding on that when we move ahead,
but a girl is much more likely to be pulled out of school in her secondary education. हमारी जो STEM studies हैं उसके अंदर खवातीन and female participation is very very low. तकरीबन 34-35% of the girls attend high school. So to achieve a comprehensive financial inclusion, those are some of the things and facts that we need to be cognizant of and address those. हमारी labor force participation is about 23%, और एक चीज जो कि पाकिस्तान में women entrepreneurship की अगर हम बात करें तो that is one of the lowest percentages in the world. So I think to achieve a comprehensive financial inclusion, given that women make great part of our population, we need to address these also, and we'll be talking about this जब हम आगे इस conversation में जाएंगे. Thank you. Thank you so much. The next question would be, how does financial literacy drive financial inclusion? Machal, can I take this question? Ji, sure. Okay. Very quickly, Jay, I know we are running out of time. फाइनेंशियल लिटरेसी किस तरह ड्राइव करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को? सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने रिसर्च की पिछले 6 साल से इस प्रोजेक्ट में देखा वो ये है कि फेयर ऑफ अननोन. अगर लोगों को किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है और उससे तो एक डर है, एक अननोन चीज है, बैंक अकाउंट खोलना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लोन लेंगे क्या होगा, इंश्योरेंस लेंगे क्या होगा, तो फाइनेंशियल लिटरेसी उसको किल करती है. दूसरी, हम सबके गिर्द एक इनिबिशन ग्लास सीलिंग है, वो जितनी अवेयरनेस दो उतना वो उसको तोड़ती है, तो बंदा उसके लिए ज्यादा गेज होता है. फाइनेंशियल लिटरेसी आपको क्या करती है? आपको एम्पावर करती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप में इंडिपेंडेंस आती है, और जब इंडिपेंडेंस आती है तो यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, यू टेक द लीप ऑफ फेथ कि यार ये मैं बनिए के पास जाके लोन क्यों ले रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल सेक्टर से क्यों ना लूं, वो मुझे सस्ता पड़ता है, ज्यादा सिक्योर है, मैं उधर एक्सप्लॉइट नहीं हूँगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद देखें, हम लोग जाते हैं मार्केट में, अगर गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, तो 5 लोगों के पास जाते हैं, वो उसके एडवांटेजेस बताते हैं, फिर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, फिर खरीदते हैं. इसी तरह जो हमारे सप्लाई डिमांड साइड है, उनको पता ही नहीं है कि भाई एडवांटेज क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के. जब आप उनको बताते हो कि यार बैंक में पैसा ज्यादा सेफ है, इजी एक्सेस है, उसके बाद इजी टू ट्रांसफर है, उस पर प्रॉफिट मिलता है, तो 95% उसी वक्त कह देते हैं कि यार मुझे बैंक अकाउंट खोलना है. तो वो एक अननोन अवेयरनेस है, एडवांटेजेस का ही नहीं पता, फिर उनको अपने राइट्स का नहीं पता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ सोसाइटी इन जनरल हम फाइनेंशियल जब राइट्स की बात करते हैं वो किसी को नहीं पता. किसी को पता ही नहीं है कि जी अगर बैंक कोई प्रॉब्लम करे फाइनेंशियल सेक्टर, तो आप बैंक की वफाकी मुतसिब को लिखो, तो 2 दिन में कंप्लेन जो है सीधा प्रेसिडेंट लेवल पे लॉन्च होती है. So in a nutshell, if we don't know about something, we will never go for it. So financial literacy provides that gateway जिससे इंक्लूजन बढ़ती है. रिसर्च सेज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अबव 0.8 0.9 पॉजिटिव कोरिलेशन कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली लिटरेट करते हो और वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है, तो दे आर मोर प्रोन टू बी फाइनेंशियली इंक्लूडेड. थैंक यू. Thank you so much. Very well explained. Now, how do you see the role of banks, particularly HBL, in promoting financial literacy in Pakistan? Faria, would you want to add to that? Sure. I think banks, Mashal, play, financial service providers are one of the key players, and I'd say the backbone of your financial ecosystem, right? So the role that they play is very instrumental in this. And to begin with, I think norms को change करने में हमारी एक जिम्मेदारी है. And HBL being the largest bank has taken multiple initiatives, जिसकी end में थोड़ी सी मैं बात करूंगी. But primarily banks का role ये है कि they need to be change agents, and we need to change the norms. इसमें सबसे पहले हमें अपनी organizations के अंदर gender diversity की ऊपर काम करने की जरूरत है. We are now also mandated to do that by the State Bank of Pakistan under the Banking on Equality policy. But that diversity sends a message out there. It helps us, strengthen our outreach and our capability to create impact. हम अगर खवातीन अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रखेंगे तो हम women as customers को बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे.
It will harness our ability to offer targeted value propositions and strengthen our women markets program. देखिए हिस्टोरिकली ऐसे होता था कि हम प्रोडक्ट्स को वाइट लेबल करके उनकी ब्रांडिंग चेंज करके खवातीन को प्रेजेंट करते थे. तो जो एक मिथ है कि मेन एंड वुमेन आर अलाइक एंड देयर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स आर द सेम, we need to understand that that is not the case. और उसके लिए बैंक्स को किसी भी कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट को टेलर करके प्रोड्यूस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड देयर अंडरलाइंग नीड्स. So we must have diversity within the organization. We need to establish targeted propositions and strengthen our women markets program. This will in turn result in outreach, greater outreach and greater impact. और HPL NISA की मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगी कि HPL we feel that being the largest comes with a whole lot of responsibility. तो हमने through the NISA program फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत काम किया, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, वोकेशनल सेंटर्स all the way across the country from northern parts of Pakistan to the big cities, उसके अंदर हमने काम किए. And these sessions actually follow a two-pronged approach. उसमें एक हमने जनरल एजुकेशन करनी है कि आपने जो एक हमारे कंट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि हमने कमेटी डालनी है या खवातीन ने तकिए के नीचे सेविंग करनी है, हम बेसिक लिटरेसी करके वी नीड टू ब्रिंग देम इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर. एंड सेकेंडली इसका जो दूसरा एक मकसद है वो ये है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की हम आगाही करें. तो आई थिंक बैंक्स का जो रोल है वो नंबर 1 अपनी इंटरनल जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर काम करना, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग वुमेन एज कस्टमर्स, एंड नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिस्टोरिकली खवातीन के लिए जब हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो दिस वाज टेकन एज अ CSR. वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस केस कंसिडरिंग दैट दे मेक अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो आई थिंक जो बैंक्स का रोल है particularly from a women aspect, those are the few things that I wanted to share. Thank you. Amir Saab, would you want to add to that, the role of HBL in promoting financial literacy and financial inclusion? Thank you, Mashal. So I'd like to discuss the role of banking sector at large and then particularly focus on HBL कि HBL में हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं. लेकिन अगर आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखें और ख़ास तौर पे पिछले 2-3 सालों के अंदर जहां सेंट्रल बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशंस और इंटरवेंशंस की गई हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है जो अभी पिछले साल 5 नए डिजिटल बैंक्स जो हैं वो भी उनके लाइसेंसेस दिए गए हैं. पिछले 3 सालों के अंदर मल्टीपल EMIs, PSOs, PSPs के लाइसेंसेस दिए गए हैं. तो एक वो रोल है जो कि ये डिजिटल बैंक्स और ये जो नए फिनटेक प्लेयर्स हैं वो आके प्ले कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में, और वो टारगेट करेंगे उस पॉपुलेशन को कि जो कि टेक्नोलॉजी सेवी है, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास ब्रॉडबैंड की एक्सेस है. और ये डिजिटल बैंक्स आके, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल बैंक्स ऐसे भी हैं जिनका ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जो ग्लोबली जो है वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करते हुए आ रहे हैं, और उनके पास एक अपना ग्लोबल मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ लाके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. फॉर बैंक्स लाइक HBL जो कि बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं और जिनकी पाकिस्तान के अंदर एक लेगेसी है और एक बड़ा ही रोबस्ट किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उन बैंक्स के लिए जिस तरह हमने पहले बात की कि मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करना, मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर काम करना वो बहुत ज़रूरी है और हम कर भी रहे हैं. इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्री सेक्टर के अंदर एक तो नंबर 1 ये कि वी आर द लार्जेस्ट एग्री लेंडर इन द कंट्री, और वहाँ पे एक प्रोग्राम है किसान की आवाज़ के नाम से, कि जो कि हम पिछले कोई 7-8 साल से चला रहे हैं, और जिसके अंदर क्लासरूम सेशंस भी होते हैं और फार्मर्स से हम जाके मिलते हैं और वहाँ पे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करते हैं, और हम अपने जो एग्री सेक्टर है और जो फार्मर्स हैं उनको इस नेट के अंदर लेके आते हैं. सेकेंडली जो है वो फारिया ने ख़वातीन की बात की, तो कनेक्ट के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा एक स्पेसिफिक टारगेट है, एंड दिस अगेन कमिंग फ्रॉम स्टेट बैंक, कि हमने अपने जो एजेंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर फीमेल्स की तादाद जो है वो हमने कितनी रखनी है, जो हमने अकाउंट्स बनाने हैं उसमें हमने अपनी फीमेल्स की तादाद कितनी रखनी है, ताकि हम इस फीमेल सेगमेंट के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो ड्राइव कर सकें. तो इस तरह मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर जो है वो हम काम कर रहे हैं.
थोड़े स्टैट्स अगर मैं आपसे शेयर करूं तो पिछले 1 साल में HBL ने जो खाली क्लासरूम सेशंस और जो स्ट्रीट थिएटर्स किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए, वो तकरीबन 400 के लगभग हैं। और ये तकरीबन जो इससे रीच हुई है हमारी, वो तकरीबन कोई 1000 से ऊपर लोगों को जो है वो रीच आउट किया गया है सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए। बहुत थोड़ा है आगे, और बहुत काम करने की गुंजाइश है, और इंशाल्लाह जो है वो हम इसी स्पिरिट के साथ ये काम करते रहेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Now, can we discuss the initiatives and programs such as the State Bank's NFLP and NFLP Youth that are currently in place to enhance financial literacy? जी Michelle, बेसिकली जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इट्स वन ऑफ आवर कोर मैंडेट्स जो हम लोगों के है, हम NFIS नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी को आगे लेके जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट रिसेंट, 10-12 साल पहले एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, चाइल्ड यूथ एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, उधर से शुरू किया था। उसके बाद जो 2 प्रोजेक्ट्स का भी आपने नाम लिया, NFLP सिक्का बाकायदा। सो NFLP जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है 18 to 60 ईयर्स ओल्ड लोगों के लिए, जो कि बैंक्स के साथ मिलकर स्टेट बैंक चला रहा है। हमारे कराची से एक इसको डिपार्टमेंट इसको हेड कर रहा होता है, और वो खुद भी इस पे काम कर रहे हैं, जिधर एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू, जिधर अभी आमिर बता रहे थे रोड शोज हुए सारा कुछ, तो दैट इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। और उसके पहले फेज में 5 साल में स्टेट बैंक हैज ट्रेन मोर देन 1.2 मिलियन पीपल अक्रॉस पाकिस्तान। फरिया वुड बी डिलाइटेड टू नो कि मोर देन 50% वर फीमेल्स और 80% लोगों का उस पर अकाउंट खुला। साथ में हम लोगों ने अभी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी शुरू किया है अक्रॉस पाकिस्तान, उसमें भी बैंक सारे शामिल थे, उस पर बहुत ज्यादा आई थिंक मोर देन 15 मिलियन पीपल वर रीच्ड। But the program which I am heading, I like to talk about it a bit in detail, National Financial Literacy Program for Youth. Kyunki we realize we need to work on Pareto rule, we need to emphasize on those 20% of the audience which would have 80% impact in economic development in future, that is the educated lot. तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिधर हमने कहा हम लोग 9 साल से लेके 28 साल तक के बच्चों को ट्रेन करेंगे। सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंटेंट बच्चों को पढ़ाना क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी देनी क्या है। सो आई टेक प्राइड कि हमारा जो कंटेंट है इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। सो द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर 9 साल का बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज है इन टर्म्स ऑफ सेविंग, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सेविंग गोल्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मेक बजट्स। तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर बना है सारा कंटेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के रिवॉल्व करता है। सो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी इज देयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनरी एंड फाइनेंशियल एथिक्स। तो हम लोगों ने 5 साल में 69 डिस्ट्रिक्ट्स में 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया फेस टू फेस। 53% वर फीमेल्स इन पब्लिक, प्राइवेट, टीवेट, मदारिस, हर जगह पे। साथ में आज रिसर्च सेट के 9 साल भी लेट है, तो वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम 6 इयर्स। तो हमने एक नया कंटेंट बनाया 6 से 8 साल के बच्चों के लिए, प्री स्कूल के लिए, और 40,000 उन बच्चों को ट्रेन किया। साथ में हमने ऑनलाइन पाकिस्तान की पहली फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन गेम बनाई जिसका नाम है पॉम्पैक, और उसमें हमने 7 लाख बच्चों को ट्रेन किया। एंड यू विल बी डिलाइटेड टू नो के व्हेन वी वर गोइंग विद फुल थ्रॉटल, तो हम लोग वी वर ट्रेंडिंग इन टॉप 3 एजुकेशनल एप्स ऑन गूगल ऐप स्टोर इन द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान। और उसके बाद हम लोगों का लार्जेस्ट हमने एक वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया 1 लाख बच्चों को, उसमें इंटर्नशिप्स दी। मगर कमिंग टू लिटरेसी, फरिया ने बात की, हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ठीक ठाक काम किया। हमने मेटा के साथ मिलकर, प्रीवियसली नोन एज फेसबुक, 6000 यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सो नॉट स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स को एक दिन की पूरी ट्रेनिंग दी, हाउ टू मैनेज योर बिजनेसेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। साथ में IRC के साथ मिलकर हमने बलोचिस्तान में 13 से 17 साल की वो बच्चियां जो कभी घर से नहीं निकली थी, टोटली अनपढ़ थी, उनको 6 महीने पढ़ना लिखना सिखाया, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स। फिर उनको 6 महीने फाइनेंशियल लिटरेसी दी, 6 महीने TVET दिया, और 8,500 बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से प्रॉपर 5वीं क्लास तक प्रमोट किया। उसके बाद इसी तरह जाएं तो इंक्लूसिव पाकिस्तान पे हमने काम किया। वी रियलाइज के इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, तो डेफ बच्चों के लिए हमने 70 डेफ टीचर्स को साइन लैंग्वेज में ट्रेन किया। उन्होंने आगे जाके 10,000 डेफ बच्चों को ट्रेन किया। गिलगित में भी हमने 3,000 टीचर्स को ट्रेन किया जो आगे जाके 1 लाख बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हम कारंदाज के साथ 3,000 टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं। बट द कोर थिंग इज सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहा हूं मैं,
HEC के साथ मिलकर हमने एडवोकेसी की और हमने जो नई अंडरग्रेड पॉलिसी आई है अभी लॉन्च हुई है 2024 में, उसमें 2 क्रेडिट आर का एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स डल गया फॉर अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन. सो वेदर अ स्टूडेंट इज डूइंग BA इस्लामियात, मेडिकल इंजीनियरिंग, दे विल गो थ्रू दैट कोर्स. Out of 3 class learning objective, 1 is financial literacy. So that's very important. Then we work with National Curriculum Council to come up with student learning objectives. तो हम लोग क्या करें कि अगले 5 सालों में हम लोग प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड करिकुलम मेथोडोलॉजी, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, मैथ, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल लिटरेसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं. So anyone who will be going through this would be part of it. So इनका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आया. आई कैन टॉक अबाउट स्टोरीज एंड स्टोरीज. बच्चों ने अपने बिजनेस शुरू कर दिए. वी रिसीव्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स के यार आपने हमें किधर फंसा दिया, हमारा बच्चा बजट पे बात करता है, हमारा बच्चा कहता है अकाउंट खोलो. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो बच्चों ने घर जाके कहा अम्मा का अकाउंट क्यों नहीं है, अम्मा तकिए के नीचे पैसे क्यों रखती हैं, सारा पैसा जब अम्मा खर्च करती हैं तो अम्मा का अकाउंट होना चाहिए. सो दीज वर वेरी इंकरेजिंग आउटपुट्स. So I know we have limited time, so I can write a book on it, but I'll stop here. Thank you so much, Salman Sir, for that comprehensive answer. Now, if we talk about specific challenges that women face in Pakistan in accessing financial services. So Faria, would you want to answer that? So thank you, Mashal. It's a difficult question, but I'll try and share, my understanding and thoughts on this. So women absolutely in Pakistan have a relatively difficult time in accessing finance, primarily on account of, legal barriers, weak business networks, restricted mobility and lack of social support, particularly for entrepreneurial ventures. Our patriarchal society and socio-cultural norms are the starting point for this, and I'll expand on these, as we move some of these as we move ahead. So essentially Pakistan is a patriarchal society, and these norms, they portray men as the breadwinners for the family and gives women the natural caregiver role, right? This makes it difficult for women, particularly their businesses, to grow at the same rate as men. This is also compounded by the fact कि access to finance के barriers भी खवातीन face करते हैं. Female entrepreneurs की जो loan requirements हैं, they are relatively more stringent compared to their male counterparts. Although इन सब के ऊपर काम अब शुरू हो गया. देखिए ये I think सलमान ने भी बात बड़ी अच्छी की, that the first step towards the resolution of an issue is to understanding and realizing that there's a problem. So I think Pakistan has evolved and we're well versed with those challenges that we face. इसके साथ साथ देखिए खवातीन को मेल गारंटर्स की जरूरत है that are not family members, and the process for loan applications generally they find it difficult. हमने इससे पहले इसी वेबिनार में फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की, but the basic literacy levels also play an important role. अगर बैंक अकाउंट खुल भी जाता है for a woman, it is not unusual for her relatives or male counterparts to use that for their own needs. Now, all these issues are again compounded by the fact कि जो हमारी सोसाइटी में men and women का एक रोल assume किया हुआ है, उसकी वजह से women are not generally appreciated to be interacting with non-family members of the male that are present in different branches. उसके लिए banking on equality में हमने gender champions place किए हैं different अपनी branches में. मैंने पहले भी बात की थी कि girls are likely to be taken out of school at an earlier age at secondary level. That makes it difficult, for them to have basic literacy and then, financial literacy. All of this is also exacerbated by this fact, जो कि हमने एजुकेशन की अभी बात की. इसके साथ साथ डिजिटल एक्सक्लूजन ऑल्सो प्लेज अ रोल एंड इज अ चैलेंज. Mobile ownership खवातीन की on their own names is limited, which kind of also is an impediment, while there are greater usage of mobile phones, but the ownership is low. So that is also, like I said, a main roadblock. इसके साथ साथ the financial infrastructure की मैं थोड़ी सी बात करूंगी. It does not sufficiently extend to women. Women generally suffer from lack of available information, lack of networks to really grow and thrive, and in terms of credit worthiness, जो collateral के related हमारे legal barriers हैं in terms of ownership, all of that also plays a compounding role and
kind of puts women at a disadvantage, right? अब इसके साथ साथ हमने पहले women in labor force की बात की, labor force participation जो है वो हमारी कम है, और अगर है तो it's in the low paying sectors such as agriculture. Women entrepreneurship is one of the lowest in Pakistan, which also then results into being unbanked. And if they will be unbanked, getting access to finance will naturally become more difficult, because the first step is to come into the formal banking sector. So I think some of those issues are the ones that I'd want to talk about. But primarily, our society, the norms, your weak business networks, legal barriers, lower labor force participation, and particularly education literacy, and then in turn financial literacy. I think to round up, those are some of the key challenges, I think, that limit their ability to get access to finance. Thank you so much for that comprehensive answer. Now, if we look on this role of banking sector and state banks on leveraging technology such as mobile banking and digital platforms to enhance financial literacy, so what would its role be in digital sector? जी थैंक यू मशल। और मैं अपना रिस्पांस जो है वो शुरू करना चाहूँगा कि जहाँ पे फारिया ने जिस तरह बात की कि ख़वातीन को अकाउंट खुलवाने में जो मुश्किलात होती हैं और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है और उनको किसी मेल मेंबर से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है कोई भी अगर उन्होंने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है अपना, तो आई थिंक बैंक जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को अगर कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता कम ज़रूर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो ख़वातीन जिनके पास स्मार्टफोन की एक्सेस है और बैंक ने अगर उनको ये इनेबल कर दिया है कि वो किसी से पूछे बगैर ऐप स्टोर पे जाएं या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, अपने घर बैठे बैठे ऐप डाउनलोड करें और अकाउंट अपना खुलवा लें, और एक दफ़ा जब अकाउंट खुलवा लिया है तो फिर उससे जो मर्जी ट्रांजैक्शंस करें बगैर किसी मेल मेंबर की अप्रूवल के बगैर, तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपना एक रोल प्ले कर सकती है और प्ले कर भी रही है। और ये हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो वैसे ही एक बहुत ज़्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है मासेस को। और जब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड कहता हूँ तो आप ये समझें कि जिस तरह व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप जो है वो किसी कंपनी का सीईओ भी यूज़ कर रहा है और वही व्हाट्सएप उसी कंपनी का शायद ड्राइवर या कोई लो लेवल का एम्प्लॉय होगा वो भी यूज़ कर रहा है। तो सेम टेक्नोलॉजी है, सेम फीचर्स हैं, लेकिन आप देखें कि सोसाइटी का क्या स्पेक्ट्रम है कि जो उसको यूज़ कर रहा है। तो सिमिलरली बैंकिंग भी अगर आप मोबाइल ऐप्स के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर शुरू कर देंगे तो वो जो एक सोसाइटी के अंदर जो हमारी ये मुख्तलिफ जो फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर पे बेस करती हैं, चाहे वो अर्बन और रूरल डिवाइड के अंदर बेस करती हैं, या वो जहाँ भी बेस करती हैं, टेक्नोलॉजी उन सबको बराबर किस्म की के फंक्शंस, फैसिलिटीज और फीचर्स जो है वो देता है। तो ये आई थिंक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए टेक्नोलॉजी का रोल तो जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसके अलावा भी इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे इलाकों में, कोयटा की एग्जांपल ले लें, कोयटा में आपको पता है हमारा वो जो बिजनेस है एक इसका ड्राई फ्रूट्स का, तो ड्राई फ्रूट पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कोयटा से। अब आजकल जो कोयटा के जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं उन सब ने अपने व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट्स बनाए हुए हैं। आप उनको व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं तो वो आपको ड्राई फ्रूट भिजवा देते हैं और साथ ही अपना एक वॉलेट का नंबर, चाहे वो कनेक्ट का हो, HBL का हो, जैज़ कैश का हो, इजी पैसा का हो, वो शेयर करते हैं और कस्टमर उनको उस वॉलेट में पेमेंट करता है और वो गुड्स डिस्पैच कर देते हैं। तो इससे ये बिजनेस जो एक्टिविटी है वो भी ड्राइव हो रही है इस SME सेक्टर में कि जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक तरफ उसने व्हाट्सएप यूज किया है ऑर्डर लेने के लिए और ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, और दूसरी तरफ उसने एक वॉलेट यूज किया है अपनी पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। तो ये एक तरह की बेतहाशा हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर की जा सकती हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये हम सबको ही पता है कि हमारा जो हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल लिटरेसी की अगर आप बात करें तो वो पाकिस्तान में बहुत कम है। लीव्स लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वहाँ बहुत ज़्यादा। ओवरऑल एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो वो तो खैर एक अलहदा पूरा टॉपिक है, अलहदा डिस्कशन है, लेकिन बैंक से काम ये कर सकते हैं कि जो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसमें कोई बंदा वो ऐप के अंदर कितना उसने ट्रांजैक्शन करनी है वो उसको पढ़ सके या ना पढ़ सके। वो ऐप का जो इंटरफेस है जिसको UI और UX कहते हैं, वो उसको इतना जो है वो इंगेजिंग बनाए, उसको इतना विजुअली अपीलिंग बनाए कि बेशक उसको पढ़ना नहीं भी आता,
कोई बंदा है या खातून है जो भी, अगर वो पढ़ना नहीं भी आता तो वो कम से कम अपनी इमेजेस को देखता हुआ अपने उस UI UX के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सके। और इसी तरह बैंक्स ने अगर फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी चाहे वो किसी आप किताब की फॉर्म में दें, लीफलेट की फॉर्म में दें, या कोई एनिमेटेड वीडियोस बना दें। और हमने देखा है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर एनिमेटेड वीडियोस जो हैं वो बनी है, और एनिमेटेड वीडियोस के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो स्केल अप हुई है। तो इस तरह की मल्टीपल टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की जा सकती हैं, और बैंक जो है वो इस डायरेक्शन के ऊपर काम कर भी रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much. Marshall, I would like to add quickly on this, please. Firstly, I think there are very valuable comments by Tosif and Mehak on the comments portion, which we can take it later. दो सवाल भी हैं audience के. But anyways, when we are talking about digital, I think something which is very important is जो 5 banks को license मिला, which are digital banks, जिनका कोई brick and mortar नहीं होगा, जिनकी कोई branch ही नहीं है. Just imagine they'll be operating in Pakistan. तो एक चीज जो फारिया ने पहले हाईलाइट की थी वो इन बैंक्स के अंदर इनहेरिटेड आ गई है, वो ये है कि द माइंडसेट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड। आई हैव मेट अप्रोक्सीमेटली ऑल द बैंक्स, तो वो अभी तक फाइनेंशियल लिटरेसी को एज अ CSR एक्टिविटी ले रहे होते हैं। दे डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट। जो ये डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो किसी को ट्रेन करेंगे तो उसको इंक्लूड करेंगे। सो फॉर देम द कॉस्ट ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी इज देयर कन्वर्जन कॉस्ट, which has to be less than the brick and mortar and the marketing cost of other companies, other banks. तो आप देखें तो उनकी अभी से फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स शुरू हो गई हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है। यू नेवर नो 5 साल में क्या होता है। सिमिलरली आमिर बात कर रहे थे एनिमेटेड उसकी लर्निंग की, तो जो हमारी गेम है पॉम पैक, जैस कैश की जो ऐप है उसमें 24 मिलियन पीपल यूजेस आर ऐप एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट। तो वो उसका एक इंटरएक्टिविटी, एक लर्निंग कर्व बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आई थिंक द फ्यूचर इज ऑफ बीइंग डिजिटल। जब तक 4G नहीं आया था तो क्रीम और उबर नहीं थे, अब 5G आ रहा है, तो इट वुड चेंज द फेस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर टू। थैंक यू। Thank you so much. Now, if you want to discuss the partnerships between banks, government, and other stakeholders in advancing financial literacy. Michelle, I think this is extremely important when we talk about sustainability. Or बाद में if we are looking at sustainability too, so we can club both of them together. The thing is कि you people would agree कि there are different stakeholders, but most of them are working in isolation when it comes to financial literacy and financial inclusion. Everybody claims that they are doing amazing job, but when it comes to leveraging each other, they are reinventing the wheels, और उसमें issues हैं. So I believe it's time that whether it's a platform of PBA, whether it's a platform of a development sector, we all need to come together. और 4-5 stakeholders हैं when we are talking about financial literacy and financial inclusion. देखिए, एक demand side है, एक supply side है, और एक economics की side है, economy की, जिधर ऑफ कोर्स पॉवर्टी, ओवरऑल एजुकेशन की आमिर ने बात की, इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं जो हम लोगों पे लगती हैं, तो बहुत सी चीजें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट has to be part of it. So I'm not talking about central bank, I am talking about key stakeholders, federal education ministries, provincial education ministries, chambers, the investment forums, planning commission, they all need to be in sync. Women के हमारे women chambers हैं, there are departments who leads women empowerment at government level, तो ये तमाम government level पे साथ मिलेंगे। उसके बाद तमाम banks को मिलके काम करना पड़ेगा, उसके साथ एकेडेमिया को इस पूरे पूल का हिस्सा बनना पड़ेगा, साथ में CSOs, सिविल सोसाइटी एंड डोनर्स। जिस तरह एक ही प्रोजेक्ट 5 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन CSR सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया हुआ, आई बिलीव देयर हैज टू बी अ वाउच डॉग on financial inclusion in Pakistan. There is a lot of money that is being pumped in, मगर unfortunately वो उस तरह implement नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। तो सीफ ने भी कमेंट किया था, awareness, educate, but implementation. So I think we are implementing things in isolation. We are not learning from each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत भी है। हम लोग यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, CSOs के साथ जा रहे हैं। If we all join hands, the all stakeholders, so it has to be a great matrix. It will make it sustainable, it will lower the barriers, and it will be a success proposition. Thank you so much.
Now, what is the future direction do you see for financial literacy programs in Pakistan, and how can we ensure these programs are sustainable and scalable? Okay, I'll quickly comment on it and then of course the others can participate. देखें, जब हम इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इट कैन नॉट रन लाइक के जी HBL का 2 लाख का टारगेट है फलाने, क्योंकि आप लोग बैंक बैठा हुआ, आपका खाली नाम ले रहा हूँ, बाकियों के मैं नाम नहीं ले रहा है. एवरी बैंक हैज टारगेट्स कि भाई आपने इतने बंदों को ट्रेन करना है, इतने बंदों को ट्रेन करना है. आई थिंक ये जो है इट हैज टू चेंज. एक तरीका मैंने बताया जो कि लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होगा, जो कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को इंटीग्रेट करें एज पार्ट ऑफ करिकुलम. तो पहली क्लास से लेके बैचलर्स तक फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ेंगे तो वो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. बट दैट इज लॉन्ग रन. जो सारे लोग आउट ऑफ स्कूल हैं उसको ये हिट नहीं करेगा. जो ऑलरेडी, जिस तरह तौसीफ ने भी कहा था, उन लोगों का क्या है जो कि ऑलरेडी मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर में काम करें और फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है. सो आई थिंक उसके लिए जो ये सारे इदारे जिनके हम नाम ले रहे हैं, जिस तरह आप लोग काम करें, वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल अप्रोचेस एज कंपेयर टू टारगेट्स. हम लोगों को प्रोडक्ट्स इस तरह के डेवलप करना पड़ेंगे. अब फारिया वुमेन अकाउंट्स को डील कर रही हैं, चेक बुक्स, बच्चों के लिए बात करते हैं तो कार्टून्स की चेक बुक्स इंटरनेशनली हो रहा है. सो वी नीड टू follow the footsteps and create and innovate on our own. Sorry, I'll stop here. I know we are time khatam ho raha tha. I would request other panelists to chip in. Thank So you. I think I'll very briefly add to that. I think Salman आपने cover कर ही लिया, but we need to create holistic ecosystems. क्योंकि challenges जो है वो multifaceted है, तो हमें networking, mentorship, access to markets, forward and backward linkages और एक supportive ecosystem जो हम create करेंगे as financial service providers and everybody coming together. That I think is the need of the hour. In addition, I think Mashal आपने scalability की बात की. I truly believe that in order for us to make this scalable, digital plays a very instrumental role, because that is how we can expand the outreach and make sure that we are able to create the maximum impact. So those are just two very quick thoughts that I wanted to add. Mr. I want to quickly add to my 2 cents into this conversation. तो इसमें my first observation or comment is कि we have been doing these NFLP programs and a lot of awareness sessions across the country. और वहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं, और वो एक्टिविटीज होती हैं कि जहाँ पे जो जिन लोगों को हम अवेयरनेस देते हैं उनके फिर हम अकाउंट्स खोलते हैं, वॉलेट्स खोलते हैं. एक ये ट्रेंड हमने देखा है कि वो वॉलेट्स तो खोल जाते हैं लेकिन उनके अंदर एक्टिविटी लेवल्स जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, या होते ही नहीं है या ना होने के बराबर होते हैं. तो आई थिंक वो क्या वजह है कि वॉलेट्स खोलने के बाद भी उनके अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही, इसको भी थोड़ा डिटेल लेवल के अंदर देखने की जरूरत है. नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक जिस तरह बात हुई थोड़ी देर पहले कि उसने, किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी फाइनेंशियल वेलनेस के लिए खुद को डिसीजन लेना है, तो दिस इज ऑल वेरी गुड. डिसीजन तो उसने खुद लेना है, लेकिन ये उसको सिखाने की शायद ज़रूरत है कि अगर वो एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो भी है, तो वो अपने इनकम लेवल्स को इंक्रीज किस तरह कर सकता है. तो फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है ये फ्रीलांसर्स वाला जो एक जो सेगमेंट है वो आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले अगर 2 सालों के अंदर देखें तो तकरीबन पिछले साल की जो एक्सपोर्ट नंबर्स अभी सामने हमारे आए हैं, कोई $500 मिलियन आए हैं इन्हीं फ्रीलांसर्स के थ्रू. अब फ्रीलांसर का एक कॉनोटेशन है कि जी फ्रीलांसर सिर्फ वही बंदा बन सकता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो मेरे ख्याल में एंटायरली ट्रू नहीं है. ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जो खाली इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं और ऑनलाइन बैठे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा के कमा रहे हैं. ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो कुकिंग क्लासेस देते हैं ऑनलाइन, और कुकिंग क्लासेस देने के बाद उससे कुछ कमा रहे हैं. तो मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, और हमें अपनी पॉपुलेशन को ये बताने की जरूरत है कि ऑनलाइन और वो कौन कौन से एवेन्यूज हैं कि जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं. और जब वो पैसे कमाना शुरू करेंगे तो उसके बाद जो ऑफ कोर्स है कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, अकाउंट खोलना है, उसमें सेविंग करनी है, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स विल फॉलो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वुड फॉलो, बट हाउ इज ही गोइंग टू अर्न हिज लाइवलीहुड, हिज और हर लाइवलीहुड, इसको सिखाना, समझाना, पढ़ाना आजकल का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग वर्ल्ड है, उसमें बहुत जरूरी है. दूसरी इसी की एग्जाम्पल लें, एग्री सेक्टर की. I'm sorry बार बार बात कर रहा हूँ, लेकिन 23% है हमारी GDP का, और 38% लोग एम्प्लॉयड हैं खाली हमारे एग्री सेक्टर के अंदर.
तो एग्री सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी यील्ड पर एकड़ है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम है। हमारा किसान जो है वो फंसा हुआ है आज भी 50 साल 100 साल पुराने एग्री के तरीकों में। तो किस तरह वो अपनी फसल इंप्रूव कर सकता है, किस तरह वो अपनी पर एकड़ यील्ड इंप्रूव कर सकता है, ये उसको सिखाना, और फिर ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट उसकी डायरेक्ट उसकी इनकम पे आता है, ये उसको समझाना सिखाना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये आई एम श्योर कि जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स होंगे वो हम इसी तरह इसको स्ट्रक्चर करके हम आगे लेके चलेंगे। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो आई एम सॉरी आपका एक पिछला सवाल था ऑन द गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स के ऊपर, तो उसमें उसमें भी मेरे दो कमेंट्स हैं। पहला कमेंट तो ये है कि एक पार्टनरशिप जो कि बहुत ज़रूरी है वो है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कंज्यूमर्स का एक डेटा अवेलेबल है। और डेटा आजकल जो है वो दैट इज़ द न्यू फ्यूल, दैट इज़ द न्यू गोल्ड, डेटा इज़ गोल्ड एट द मोमेंट। तो अगर कोई कंज्यूमर हमारे पास आता है किसी भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी पिछले साल की इनकम क्या थी, उसने पिछले साल ट्रैवल अगर किया है तो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास फ्रेगमेंटेड पड़ी हुई है, लेकिन बैंक्स को उस डेटा की एक्सेस नहीं है। अगर वो डेटा की एक्सेस बैंक्स को हो तो बैंक्स जो हैं वो उसके ऊपर बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो आई थिंक उस डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जो GDPR 2 के जो रूल्स हैं कि जिसमें कस्टमर कंसेंट आपको चाहिए उसका डेटा एक्सेस करने के लिए, तो वो कस्टमर कंसेंट तो जरूर ली जाएगी, लेकिन वो डेटा पॉइंट्स, वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कर सकें। तीसरी मैं बात ये करूंगा कि शायद हमें कुछ थिंक टैंक्स ऐसे बनाने की जरूरत है। और मैं अगेन ये स्टेट बैंक को मैं कंग्रेचुलेट भी करूंगा, और मैं मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि पिछले साल 1.5 साल में, और माशाल्लाह आप उस इनिशिएटिव का पार्ट रही हैं कि जो IT सेक्टर के साथ जो है वो हमने, स्टेट बैंक ने, बैंक्स ने और पूरी इंडस्ट्री ने मिल के जो काम किया है, और वो काम जिसमें स्टेट बैंक ने पॉलिसी के अंदर भी रिलैक्सेशंस लेके आए हैं, आउटवर्ड रिमिटेंसेस के अंदर भी IT सेक्टर के लिए रिलैक्सेशंस लेके आए हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग के अंदर रिलैक्सेशंस लेके आए हैं, और क्रेडिट एक्सेस हमने अब IT सेक्टर के लिए बेहतर की है। और उसके रिजल्ट्स अब हम देखना शुरू हो गए हैं कि तकरीबन IT सेक्टर के अंदर पिछले 6 महीनों के अगर आप स्टैट्स देखें तो मंथ ऑन मंथ 5 से 6% की ग्रोथ है। तो आई थिंक ये एक सक्सेस स्टोरी है, और इसी को रेप्लिकेट करने की जरूरत है बाकी सेक्टर्स के अंदर, कि बाकी सेक्टर्स के अंदर ऐसी क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, डिजिटल इंटरवेंशंस हैं, या बैंक्स की तरफ से फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंटरवेंशंस हैं जो की जा सकती हैं, कि जिससे वहां पे भी जो इंक्रीज है वो देखने में नजर आएगा। तो these were my 2 cents. Thank you very much. Thank you so much. We'll look at some comments we have received. Tausib Saab is saying awareness, educate, and implementation. Rightly said. Mehek has pointed out great points. Thanks. Are there any programs to educate the youth generation? That is 28 years of age, since they are already a part of financial system and already making money by that age. Thank you, Mehak, for the question. Salman Saab, would you want to answer that? जी देखें जी, बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, खाली स्टेट बैंक की तरफ से नहीं, और भी बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक हमने बताया NFLP, उसमें दिस मटेरियल इज अवेलेबल। उसके बाद पॉम पैक, अगर आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च करें, iOS, एंड्रॉयड या वेब पे या निबाफ के LMS पे आ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे पड़ी है एजुटेनमेंट, उस पे भी आप ये सीख सकते हैं। उसके बाद यू गो टू एनी बैंक्स वेबसाइट, most of the banks have their financial literacy content in terms of how to open account, how to use it. I would not name any banks, मगर banks के बड़े अच्छे content पड़े हैं। And I am sure कि I was in a meeting with HBL team some time back, 4 साल पहले, तो उस वक्त इनका इतना अच्छा content था, तो अब तो I am sure कि और भी develop हो गया होगा। So I think you just Google it and you'll find millions of program and opportunities where 28 plus year can upscale their financial literacy, financial investment and entrepreneurial skills. Thank you. Thank you so much. In the interest of time, I'll very briefly answer the earlier question on financial literacy and how we, spread that.
हमने during the course of the webinar बात की on conducting financial literacy sessions. तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि पिछले 5 सालों में 4000 से ज़ायद financial literacy sessions हमने किए, and largely these are outbound sessions where we go into different areas, universities, schools. We also use mobile vans and go to remote areas जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, हम वहाँ पे far flung areas and remote areas में भी जाके ये literacy sessions करते हैं, जिसमें conversion rate incidentally for women is over 80%. यानी कि अगर हमने 1 लाख से ज़ायद लोगों को हमने financially literate किया तो over 80% of them opened bank accounts with us. So I think that is how and what steps we take to financially make our people literate. And very quickly जो हमारी internally है for HPL मैं बात करूंगी, to address the issue जो सवाल में raise हुआ, gender smart banking program HPL ने launch किया working with British International Investment, और हमारे 70% से ज्यादा स्टाफ ने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया, which basically focuses on the strategic advantages to cater to female audience. That not only helps us tailor our products and services, but educates our staff to effectively deal with these customers. So I hope, Mashal, that very briefly answers this question also. Thank you so much. So thank you to our esteemed panelists for their invaluable insights, and to all our attendees for participating in this important discussion. Financial literacy is the cornerstone of financial inclusion, and together we can create a more inclusive and prosperous society. Thank you and have a great day. Thank you, everyone. Thank you.